Discuss barbiturate poisoning. Barbiturates are classified into the inebriants. These are the compounds used as sedative, hypnotic, or when given intravenously as anesthetic. It is also used in psychiatric disorder, for example, epilepsy, strychnine poisonings. Barbiturates are classified into four groups depending upon their mode action. These are classified into long, intermediate, short, and ultra short acting barbiturates. Next, a classification of barbiturates. Long acting barbiturates. Effect starts from 1 hour to and lasts for 8 to 12 hours. Fatal dose is 3 to 4 gram. Examples are barbitone, phenobarbital. Intermediate acting barbiturates. Effects start from half hour to 4 to and last for 4 to 8 hours. Fatal dose जो है वो 2 to 3 ग्राम. Examples are butobarbitone, pentobarbitone. Next है short acting barbiturates. Effects start from 15 minutes to and last for 2 to 4 hours. Fatal dose is 1 to 2 gram. Examples of short acting barbiturates are cyclobarbitone, hexobarbitone. Next is ultra short acting barbiturate. Mode of action is sudden. Fatal dose is 1 gram. इसमें thiopentone sodium and methohexobarbitone. These are examples of ultra short acting barbiturates. Signs symptoms. Acute intoxication present with following stages: early manifestations, late manifestation, stage of recovery and barbiturate blisters, next coma and death, and barbiturate automatism. Early manifestation. Initially, the patient presents with giddiness, ataxia and slurred speech, followed by stupor. The limbs become flaccid, reflexes lost, alternate dilatation and contraction of the pupil. Late manifestations of barbiturates are the face become cyanotic, respiration becomes slow, periodic, giant stroke breathing start. There will be fall of BP, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, बॉडी टेम्परेचर विल बी सब नॉर्मल, नॉर्मल से कम हो जाएगा. ओलिगुरिया में डेवलप. In stage of recovery, the patient will recover from coma and there will be skin manifestations called barbiturate blisters. इसमें blisters बन जाएंगे. These blisters are formed at frictional area such as axilla, inner aspect of knees, calf, interdigital cleft, etc. Blistering is now explained is due to the dependent skin edema from venous return, consequent due to the immobilization of the patient during coma stage. Coma and death. Finally, coma may develop leads to death due to the respiratory failure or edema of the lung, bronchopneumonia and cardiac failure. इसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ हो जाती है. Barbiturate automatism. When a person becomes addicted to barbiturates, he forgets that he has taken tablets and so take more and more tablets till intoxication develops. इसमें ये होता है कि पेशेंट जब बार्बिचुरेट्स टैबलेट लेता है किसी की वजह से, एपिलेप्सी की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से, तो वो बाजू का भूल जाता है कि उसने टैबलेट ली है या नहीं ली.
तो वो बार बार अपनी डोज रिपीट करता है, जिसकी वजह से उसको बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बार्बिचुरेट ऑटोमेटिज्म। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है इसकी कि ये अल्कोहल के साथ मिक्स करके अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं एंड यूज फॉर सुइसिडल इंटेंशन। क्रॉनिक पॉइजनिंग के साइन सिम्टम्स जो हैं, क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है नॉर्मली उन पर्सनस में होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बार्बिचुरेट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सिस के केसेस में, या किसी को नींद नहीं आ रही या कोई और मसला है, तो उनमें क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाती है। साइन सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन आर एपैथी, लॉस ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वर्टाइगो, ट्रेमर, एटेक्सिया, थिक स्लीप, डिलीरियम, हेलुसिनेशन जिसमें विजुअल हेलुसिनेशन हो जाती है एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सपोर्ट वाइटल सिस्टम। सबसे पहले 3 वाइटल ऑर्गन्स को असेस करेंगे। सबसे पहले CNS को, उसका कॉन्शियस लेवल, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसके एयरवेज देखेंगे ओपन है, और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, तो उसके मुताबिक उसे ट्रीटमेंट करेंगे। तीनों वाइटल ऑर्गन्स को ट्रीट करेंगे। अगर कोई मसला है, टंग बैकवर्ड फॉल कर दिए तो उसे करेंगे, अगर स्क्रीशंस हैं तो उसे रिमूव करेंगे ट्रिकिया में। उसके बाद प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, इसके लिए हम एमेसिस करवा सकते हैं। अगर कॉन्शियस है पेशेंट, गैस्ट्रिक लवाज करवा सकते हैं विद वार्म वाटर या KMNO4 के साथ। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं टू रिमूव अनएब्जॉर्ब पॉइजन। कैथारसिस दे सकते हैं टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, ताकि वो जल्दी से पॉइजन जो है बॉडी से रिमूव हो। इसके अलावा अगर पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया है तो उसके लिए हम फिर फोर्स डायूरेसिस करवाएंगे, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस के 2 मेथड्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। इसके अलावा हीमोपरफ्यूजन भी कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद गुड नर्सिंग केयर। अगर पेशेंट कोमाटोज है तो उसकी नर्सिंग केयर करेंगे, सिम्टोमेटिक करेंगे, उसकी एक्सटर्नल ऑरिफिस की केयर, आइज़ की केयर, के बैक स्किन की केयर के बेड सोर्स ना बने, ये सारी सपोर्टिव केयर्स करेंगे। इसके अलावा अगर उसने सुइसाइडल इंटेंशन की वजह से टैबलेट्स ली हैं तो उसकी साइकेट्रिक केयर आफ्टर वो अगर सर्वाइव कर जाता है तो हम वो भी करेंगे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, मेनली बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में साइंस ऑफ एक्सफिक्सिया आपको मिलेंगे। फाइन फ्रॉथ होगी फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स। इसके अलावा स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन्स में आपको पर्टिकुलर हेमरेज मिलेंगे, और इसके अलावा कंजेशन होगी इन विसरस की।